આવલા, એલોવેરા, ગળો, તુલસી અને લીમડાના પાન લઈને મિક્સીમાં નાખીને અને એને ક્રશ કરી દેવાનો. એ જ્યુસ તૈયાર થઈ જાય. એ તો અદ્ભુત હોય છે ફંગલ ઇન્ફેક્શનમાં. કોઈ પણ જાતની અશુદ્ધિ હોય શરીરમાં તો આ જ્યુસ પી લેવાનો. આ જ્યુસ અદ્ભુત છે. અને આ જ્યુસ પીવે અને જેને પેટ ઉપર બહુ જ અસર થઈ ગયો હોય ફંગલ ઇન્ફેક્શનનો, એના માટે આ છે સર્વકલ્પ. સર્વકલ્પનો ઉકાળો. અને આ ઉકાળાની બાબત અમે ઘણી વાર બતાવ્યું છે. અને આ છે મેધાક્વાત. અને આ મેધાક્વાત અને આ સર્વકલ્પક્વાત, આ બધું પિલાવીને અમે પેટનું ઇન્ફેક્શન, પછી નાકમાં, આંખમાં, દિમાગ સુધી આ ઇન્ફેક્શન જાય, એને આપણે કેવી રીતે દૂર કરી શકીએ એ બાબત. એક તો આ જળનીતિ જબરદસ્ત છે. ફંગલ ઇન્ફેક્શન આ વખતે દેશની એક મોટી પ્રોબ્લેમ છે. જમણા નાકમાં નાખી દીધું, ડાબા નાકથી ઓટોમેટિકલી પાણી નીકળવા લાગે. આમાં ખાસ વાત આ છે કે મૂંઢાથી જ શ્વાસ લેવાનું હોય, નાકથી નહીં. પછી નાકમાં નાખીને અને આરામથી ધીરે ધીરે નાકમાં નાખીને મૂંઢાથી કાઢી દેવાનો, તો સૂત્ર નીતિ થાય. પછી ત્રિફળા પાણી, રાત્રે ત્રિફળાને પાણીમાં મૂકીને સવારે એના ગાળીને અને આંખ વાસ કરવાની. તો ત્રિફળા આઈવાસ, આ સૂત્ર નીતિ, આ જલ નીતિ, આ અદ્ભુત એનાથી લાભ થાય છે. અને એની સાથે સાથે કપાલભાતિ અનુલોમ વિલોમ તો કરતા જ રહો. આ જુઓ, આ તો મિટ્ટીની પટ્ટી પેટ ઉપર અને માથા ઉપર મૂકવામાં આવે. એ તો એક્સપર્ટ થઈ ગયા છે, સૂતે કરે છે. તો આ માટીની પટ્ટી આ પેટ માટે અને મસ્તિષ્ક માટે, પેટના ઉપર અસર થઈ ગયો, આંખ ઉપર, માથા ઉપર અસર થઈ ગયો હોય તો પણ આ બહુ જ જબરદસ્ત છે. આમાં આ તો થયું શિરોધારા, એ પણ અદ્ભુત છે. આ શિરોધારાથી તો માણસને થોડી વારમાં તો ઊંઘ આવી જાય. તક્રથી, ક્ષીરથી, દૂધથી, વિભિન્ન તૈલથી આ. અને એની સાથે સાથે ઘણી બધી જે ટ્રીટમેન્ટ પદ્ધતિઓ છે, આમાં અક્ષિતર્પણ, આંખ ઉપર અસર થઈ ગયો તો મહાત્રિફલા ઘૃત એ આમ આંખમાં નાખવામાં આવે. અને આ તો એ ભાઈનું તો પૂરું થઈ ગયું લગભગ અડધો કલાક. અને એ આંખ માટે એના લગભગ અડધો કલાક રાખવામાં આવે. એ જબરદસ્ત લાભ કરે છે આંખમાં. અને એક ખાસ વિધિ બીજી છે, એને મૂઢા ઉપર, નાક ઉપર એને નસે. અને પછી અહીંયા તમે જુઓ છો આ નાકમાં આ લઈને મુલેઠી છે અને ગાયનું ઘી છે, લઈને એક નાકથી બીજા નાકથી કાઢવામાં આવે છે. અને અહીંયા આ નસ્યમાં મૂઢા ઉપર, મુખ્ય ઉપર કરો, મૂઢા ઉપર, નાક ઉપર, માથા ઉપર આવું મસાજ કરીને પછી એને તેલ ડાલ દો. તેલ નાખીને પછી એને સ્ટીમ આપવામાં આવે. એમાં સ્ટીમ છે એ 10 મૂળની, મુલેઠીની, શ્વાસારીની સ્ટીમ પછી આપવામાં આવે. તો આ નસ્ય થયું, આ ધૂમપાન થયું, અક્ષિતર્પણ થયું અને શિરોધારા. આવી જે પ્રક્રિયાઓ છે એનો અદ્ભુત લાભ થાય છે. અને એ કરીને અમે ઘણા બધા રોગો મટાડ્યા છે અને અહીંયા મટાડીને બેસ્યા છે. तेरे को क्या प्रॉब्लम थी? कोरोना जो है पिछली बार लॉकडाउन में कोरोनिल लिए काफ़ी, और उससे कोरोनिल से फीवर नहीं आया. मेरा बेटा जो है वो एलोपैथिक का इंटर्नशिप कर रहा था गंगाराम में, और कोरोना के ही पेशेंट वो देख रहा था. तो उसको कोरोनिल दी है, उससे कोरोनिल से उसको कभी भी फीवर नहीं आया. वो एक बार कहता कि नाक में पाइप डाल रहा था तो एकदम उसने, जो कोरोना का पेशेंट था पॉजिटिव, उसने छींक दिया और उसको कोरोना नहीं हुआ मेरे बेटे को.
वो डर गया था कि घर में सबको हो जाएगा। क्यों ये बालक भी गया था, बालक डर गया कि ये तो इतना हाई इन्फेक्शन, और उसने छींक दिया तो छींक में तो पूरा आता है कोरोना, लेकिन तो वो सबसे बोलता रहा कि आप मेरे से दूर रहिए, आप लोगों को ना हो जाए, और मम्मा आपको जरूर हो सकता है। उसको लगता है लेडीज को जल्दी रहता है। तो मैं तो प्राणायाम करती हूँ, काफी टाइम मैं रामदेव जी से जुड़ी हुई हूँ 2002 से, और योग भी कराती हूँ गुड़गांव से। सर तुम्हारा बेटा डॉक्टर हो गया, तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी 46। ये तो खुद ही देखो, योग करने से उम्र छोटी लगती है, मेरे से तो ये कहीं कॉलेज से तो नहीं आई अभी। तो कितने साल से कर रही है योग? मैं करीबन मुझे 15 साल। सबसे पहले आप टीवी पे आस्था पे आए थे, तो मैं अपने हस्बैंड को बोली कि एक बाबा है, कुछ करा रहे हैं और मेरे सर में कुछ होता है उनके योगा करने से, कपालभाति कर रही हूँ, सर में करंट सा ऐसा हो रहा है, और मेरी मेमोरी लॉस थी उस टाइम, मेरे को थोड़ा सा याद नहीं रहता था, जैसे किसी का नाम है वो मैं भूल जाती थी, तो वो फिर मेरे को याद रहने लग गया। तो मैं एकदम रामदेव जी से बिल्कुल जुड़ गई, और हाँ जी, फिर मैं आई एडवांस योग सीखा मैंने राम जी से। अच्छा, हाँ जी, तो पुरानी शिष्या है तो? हाँ जी, और अब मैं योगा करवाती हूँ सबको पार्क में, और वैसे लॉयर हूँ। वही मैं सोच रहा था, ये पेशेंट है, योगा इंस्ट्रक्टर है? मैं लॉयर हूँ, और लॉयर है? हाँ जी। अच्छा। और मैं साल में 2 बार योगग्राम आती हूँ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, ताकि मैं हमेशा ऐसे ही रहूँ। तो ये बैरिस्टर ब्रिटेन से पढ़ के आई, तेरे को क्या हुआ था तू भी बता दे। स्वामी जी, कोविड हुआ था फर्स्ट वेव में लास्ट ईयर, और स्मेल टेस्ट सब चला गया था, तो फिर अनु तेल डाला, तो उससे 2 ही दिन में स्मेल टेस्ट सब वापस आ गया। 2 दिन में वापस आ गया। ये बैरिस्टर है, छोटी सी लग रही है, बहुत पढ़ाई पढ़ के आई है, बड़ी। हाँ, बैरिस्टर की पढ़ाई थोड़े लोग पढ़ते हैं, क्यों वकील साहबान? तो अब 2 दिन में इसने अपना वो गंध वापस आ गया, और अब तो पूरा योग कर रही है। हाँ जी स्वामी जी। फिर परिवार को हो गया, सारे परिवार को संभाल लिया प्रतिष्ठा ने। मैं गुजरात से हूँ, हाँ। बड़ौदा। तो गुजराती में हाँ, बोलो। तो गुजराती में बोलती हूँ मैं। हाँ। हमारे परिवार में सब गुजराती में बात करो ना, भूली ગયા? અમારા કુટુંબમાં છે ને બધાને જ થઈ ગયું તો બધાને થઈ ગયું તો? અને અમારા ઘરે બધા કોરોનિલ કીટ, પછી અશ્વગંધા, શ્વાસારિષ્ટ, જે પણ આપણે લઈ અહીંયા પરિવારનું પતંજલિનું જે છે બધું અમારા ઘરમાં વાપરીએ છીએ છેલ્લા 10 વર્ષથી. છેલ્લા 10 વર્ષથી? અને 10 વર્ષથી અમે યોગા બધા પણ સારા કરીએ થઈ છીએ. બધાને સરસ થઈ ગયું, કોઈને દાખલ નથી કરવા આખા પરિવારને સારું કરીને આવી છે આ છોકરી તો. હા, ક્યાંથી આવી છે? વડોદરાથી. તમને શું થયું હતું? कहाँ था? पीछे बैक पे हो गया था मेरे को, 6-7 महीने से हो गया था, सही नहीं हो रहा था। फिर यहाँ पे आके कायाकल्प तेल एडवांस लगाना स्टार्ट किया, और वो अब पूरा सही होना स्टार्ट हो गया। क्या नाम है? शाल्वी मित्तल। चलो भाई, सालवी के लिए जोरदार ताली बजा दो। नाने नानी बालको, ये छोटे छोटे बच्चे, पहले तो इनको आयुर्वेद में कि आयुर्वेद में क्या होता, अब इनको लगता है आयुर्वेद तो सुपर साइंस है। और भस्म भी क्या क्या लगानी start क्या कर पढ़ाई दी। करती हो? सीए कर रही हूँ अभी। सीए कर रही है? ये तो वही वाली तो नहीं है, पुरानी वाली? हाँ, हाँ, हाँ। जो परसों मिली थी आपसे। मैं ये मैंने कहा तो पुरानी वाली लग रही है, लेकिन नई नई हो गई। ये लो, तेरी बेटी को। हाँ, उनको हमने घर पे बुलाया, अपने रखा, लेकिन हमें नहीं हुआ। हाँ। क्योंकि हमने कोरोलिन और स्वासरी और अनुतेल यूज की। ये लो, बेटी को ठीक कर लिया और अपने आप को होने नहीं दिया। हाँ? तो जी, मेरे हस्बैंड को रेटिना पिगमेंटोजा है, वो अंदर जो शिरोधारा हो रही है वो मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा, तो उनकी वजह, उनके लिए ही आए हैं हम यहाँ पे। और वो कोरोना की बता। कोरोना का तो पूरे परिवार में किसी को हुआ नहीं। पूरे दिल्ली में कोरोना हुआ। दिल्ली में तो हाहाकार थी, हाहाकार। 80-90% लोग जाने अनजाने में कोरोना के शिकार हो गए। और मैं रोज बाहर निकलती थी, क्योंकि ये था कि कोई एक जना तो निकलेगा, कुछ तो चाहिए ना। मैं निकलती थी, मैंने कहा मैं ही जो होगा मुझे होगा, नहीं हुआ मुझे। ये लो, मैं रोज कोरोनिल खाती थी, डेली रोज कोरोनिल खाती थी। तेरे को क्या हुआ? मेरे को कोरोना मैंने અને મારા હસબન્ડને હા. વડોદરા ગુજરાતથી આવ્યા છે. ગુજરાતથી આવી છે? હા, હા, અમે સાથે જ છે. હા, હા, પડોશી છે. મને અને મારા ઘરવાળાને બંનેને કોરોના થઈ ગયો હતો, અને અમારા ઘરમાં 6 મેમ્બર છે, પણ અમે કોરોનિલ અને જે આખી કીટ છે એનો ઉપયોગ એ કર્યો. વાપર્યું? હા, તો 7 દિવસમાં તો નેગેટિવ રિપોર્ટ આવી ગયો. 7 દિવસમાં. અને મને બીજું ફંગલ ઇન્ફેક્શન સ્વામીજી બહુ ટાઈમથી છે. क्या क्या છે? મોઢામાં જ છે, મોઢામાં છાલા પડી જાય કાયમ, ને
એ તો મટી જશે એમાં છે ને આજે જે બતાવ્યું છે ને બધું કાયાકલ્પ નીમ ગળોય આ વાપરજો હા તો એ તો એક સ્પેશિયલ ફેમિલી મિલ ગઈ है ઠાડીવાળી હા જો જે બાળકો પૌષ્ટિક આહાર લે યોગ કરે તો પછી એની ફિઝિકલ મેન્ટલ ગ્રોથ આવી સરસ રહે જેમ આ જબલપુરથી આવેલા છે હા कितने क्या करते हो तुम? मैं जी डीन स्टूडेंट वेलफेयर हूँ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में विद्याना क्षेत्र में से और 6 फीट हाइट हो जी हाँ 6 फुट 3 इंच हाइट और स्वामी जी इस वर्ष 2002 से मैं आपको जब कनखल वाला जो आपका वहाँ पर जब कार्यक्रम हाँ। आपकी ब्लैक एंड व्हाइट जो किताबें जो छपी हैं योग की मैं तब से फॉलोअर हूँ। क्या बात है पुराना चेला आ गए तो। और मैं तो सभी से कहना चाहूंगा कि महर्षि पतंजलि चरक और सुश्रुत इनकी जो मानव सेवा भावी परंपरा के अग्रगामी वास्तुत्व प्रमाण है स्वामी जी आप और पूरे विश्व के लिए एक वरदान है। और हम स्वामी जी पूरा परिवार इस कोरोनिल के दौरान, ये मेरे दोनों बच्चे हैं इनमें ये बड़ा है ये छोटा है ये 12 साल का स्वामी जी और ये 10 साल का है। हम चिंतित लोग हाइट के लिए चिंतित होते हैं कैसे बढ़ेगी हम चिंतित ये कि इनकी अब आगे समय पर रोके कैसे क्योंकि एक समय के बाद ऐसा लग रहा है ये हमको हाई स्कूल पहुंचने के पहले ही न क्रॉस कर जाएं। सर्वांग आसन रोज करना। एक अमित लड़का है यहाँ बहादुराबाद में हरिद्वार में दयानंद जी उनके पिताजी वो मेरे पास लेके आते थे आपको रियल बात बता रहा हूँ 25 साल पहले मेरे से बोले स्वामी जी इसकी हाइट बढ़ जाती बहुत बढ़ रही है तो वो जब तक सर्वांग आसन करे तब तो रुक जाए और जैसे सर्वांग आसन छोड़ दे फिर बढ़ने लग जाए। वो बच्चा 6 फीट पे बड़ी मुश्किल से रोका तो सर्वांग आसन डेली 2 मिनट कर लेना तो 6 फीट तक 6 फीट ठीक है अपने बाप के बराबर तो होना ही है। तो सर्वांग आसन ऐसे ही करते रहना तो आपकी एक लिमिट से ज्यादा बढ़ेगी नहीं। योग नाम है बैलेंस का समत्वम योग उच्यते क्या बोला योग उच्यते उच्यते तो योग समता लेकर के आता है न ज्यादा हाइट न कम हाइट न ज्यादा तगड़े न ज्यादा पतले। अब ये ऐसे योग करके वेट कम होता है और मेरा कम होता रहता तो मेरी तो हड्डी पसली बच जानी चाहिए थी अभी तक। तो जी मैंने अभी इसमें आपके लॉकडाउन के दौरान पिछले लॉकडाउन से अभी तक के करीब 20 किलो वेट कम किया 20 किलो वेट कम किया है क्या बात 125 के करीब हो गया था स्वामी जी और अभी 105 है। अभी भी हालांकि डॉक्टर ने कहा है कि अभी भी आपका ज्यादा है करके पर बहुत दिनों से 105 तो कोई 5 किलो और घट जाएगा। हाँ जी। इतना तो होना ही चाहिए 6 फीट 3 इंच का आदमी है जी, जी, जी। है? बस आपका आशीर्वाद है स्वामी जी। क्या नाम बेटा आपका नाम बताओ। अभिज्ञान शर्मा अभिज्ञान और अश्विन शर्मा अभिज्ञान और अश्विन के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। ये तो इतने पसंद आ गए मुझे लगता है कि एक को तुम अपने पास ही रख लो। स्वामी जी उनकी माता तो इसका मन बना करके आई है कि स्वामी जी की अगर वहाँ भाई देखो मैं कहता हूँ एक अपना परिवार का वंश चलाने के लिए क्या बोलता हूँ परिवार का वंश चलाने के लिए एक हमारा भी तो वंश है ऋषियों का तो खैर ये तो जैसे जैसे जिसका प्रारब्ध होगा। बैठो भाई। तो ये हमारे जज साहब हैं ये भी पक्के योगी हैं और माने अब तो ये रिटायर हो गए रिटायर जैसे लग नहीं रहे पूरे सर्विस के दौरान करीब कितना 15-18 20 साल योग करवाते रहे हैं सबको जैसे वो हिसार वाली माता जी बता रही। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी मैं 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ आपसे। कपालभाति अनुलोम विलोम चालू रखो। और सबसे पहले मैंने बेंगलोर में 2001 में नेशनल कॉलेज ग्राउंड में आपका शिविर अटेंड किया। हाँ अग्रवाल समाज ने वो करवाया था संतोष अग्रवाल जी ने करवाया था। तो उस टाइम सबसे पहले मतलब मेरे को जो अटैचमेंट हुई आपसे उसका रीज़न ये था कि मैं 10-12 साल से मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम थी और मैं थायराइड की दवाई खा रहा था और वो भी जो इंडिया की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है इनमास दिल्ली में वहाँ पर से मेरा ट्रीटमेंट चला था। मैंने उनसे पूछा भी ये दवाइयाँ कब तक खानी है वो कहने लगे जी जब तक आप जियोगे तब तक खानी है। तो कोई और दूसरा रास्ता था नहीं लेकिन मन में एक ऐसा होता था कि यार ये कोई ज़िंदगी ठीक सी है नहीं है तो गड़बड़ की बात है सारी ज़िंदगी दवाइयों पर रहना पड़ेगा लेकिन कोई चारा नहीं था तो खाते थे। तो जब मैं पहली बार स्वामी जी आपसे कैंप अटेंड किया मैं वहाँ मिला था अग्रवाल साहब के घर पे ही तो स्वामी जी मैंने आपसे पूछा मैं स्वामी जी मेरे को तो ऐसे ऐसे जो ना थायराइड की प्रॉब्लम है तो स्वामी जी ने उसी दिन कहा अब भी ठीक आज से बंद कर दो एल्ट्रोक्सिन। आप मैंने पूछा स्वामी जी ने क्या खाते हो मैंने कहा स्वामी जी एल्ट्रोक्सिन खाता हूँ तो उनका आज से बंद।
मेरे को तो अंदर में, लेकिन मेरे दिमाग में इन्फ्यूज कर रखा था सारी जिंदगी खानी है। तो मैंने कहा मैं स्वामी जी ये कैसे होगा। वो डॉक्टर साहब ने तो बोला है सारी जिंदगी खानी है। स्वामी जी थोड़े से कड़क स्वभाव में बोले मेरी बात माननी है डॉक्टर की। तो मैंने कहा ठीक है मैं स्वामी जी आपके पास आपकी ही माननी है। तो फिर उसके बाद मैंने ये थायराइड की दवाइयाँ एल्ट्रोक्सिन बंद कर दी और उसके बाद 100% में क्योर हो गया और एकदम ठीक हो गया। और डायबिटीज भी तो हुई थी? और डायबिटीज हो गई जी। डायबिटीज 275 थी। वो डॉक्टर बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा भाई ये दवाइयाँ खाओ। तो मैं दवाइयाँ खाता रहा, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं होती थी। मैं यार ये तो गड़बड़ है, डायबिटीज मेरे जैसे कि मैं योग भी करता हूँ क्यों हो गई। क्योंकि सिटिंग बहुत ज़्यादा थी, कोर्ट में बैठे रहते थे पूरे दिन रात, मतलब कोर्ट का ही काम करते रहते। तो सिटिंग बहुत ज़्यादा थी। तो डायबिटीज़ में फिर मतलब जो मैंने देखा ये नहीं, फिर स्वामी जी से पूछा तो स्वामी जी ने कहा अभी प्राणायाम जो आप करते हो कपालभाति की लिमिट बढ़ा दो। तो मैंने आधा घंटा नॉन स्टॉप कपालभाति प्राणायाम किया और दवाइयाँ का अपनी जो मधुनाशनी खाई टैबलेट, और 100% क्योर होगी। अब 100 आ गई। 100 है? 100 लो। और 20 साल से जहाँ जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चंडीगढ़ में सब जगह योग कराया सबको। और स्वामी जी मैं एक और बात सीटिंग जज होते हुए, मैं चंडीगढ़ में जब मेरी पोस्टिंग थी, ये बात मैंने नहीं बताई कभी भी। तो जब उस टाइम 2005 और 2009 के बीच में मैं बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा था। तो उस कोहरा में मैं दौड़ लगाता था सुखना लेक पे, तो मेरे लंग्स के अंदर वो कोहरा बैठ गया। तो मैंने देखा ही पता नहीं क्या हो गया। तो वहाँ PGI चंडीगढ़ में मैं चला गया। 5-6 डॉक्टर्स की टीम ने एग्जामिन किया। वो ब्रोंकोथेरेपी या क्या कहते हैं यहाँ पर वो डाल करके डायलीमल जो ना, तो डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे। कोई कहने लगा ये तो TB हो गई इनको, कोई कुछ कहे, कुछ ऑर्डर बैठा दिया मुझे TB हो गई दोनों लंग्स में। मैं और घबरा गया, मैं अरे तो बड़ी गड़बड़ की बात है। चलो उन्होंने दवाइयाँ दी, मैं 7-8 दिन तक दवाइयाँ खाता रहा। तो वो मतलब ठीक ही ना हो। तो उसके बाद फिर मतलब जो ना मैं मतलब जो ना भाई ये तो ठीक नहीं है। तो मैंने ड्राइवर को बोला मेरे को जो है पतंजलि में लेके चलो। तो मैं आचार्य जी से मिला। स्वामी जी तो बाहर टूर पे गए हुए थे। तो स्वामी जी से मैंने कहा मतलब आचार्य जी से मैंने कहा आचार्य जी मैं तो कमज़ोर पड़ गया हूँ। तो कहने लगे जज साहब क्या हुआ। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मेरा लंग्स सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम चोक हो गया है और बहुत दिक्कत है, और मैं 5-6-7 दिन PGI में भी एडमिट रहा, कुछ भी नहीं हुआ चंडीगढ़ में। तो उन्होंने मतलब जो कहा भाई ठीक है, उस टाइम देर हो गई थी आते आते, कल सुबह 9 बजे आओ। 9 बजे से उन्होंने उनको बोला डॉक्टर साहब को अब मुझे कल 4 बजे तक ये जज साहब बिल्कुल ठीक चाहिए। तो उसके बाद मेरे को उन्होंने शॉर्ट क्रम और पता नहीं क्या क्या कराया, और मैं शाम के 4 बजे तक 90% में ठीक हो गया। तो ये जो डॉक्टर्स है ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाते हैं। मैं बताता हूँ, लूट खसोट का धंधा बना रखा है इन्होंने। अब सारे हॉस्पिटल बंद करा के नेचुरोपैथी सेंटर खोलते हैं। स्वामी जी मैं मोहित भाटिया नोएडा से हूँ। आपको नोएडा दिल्ली NCR का हाल पता ही है कितना कोरोना फैला था। मेरे को और मेरी वाइफ को दोनों को कोरोना हो गया। मेरी छोटी 8 साल की बेटी है रीत, उसको सर्दी मौसम जब भी चेंज होता है बुखार फीवर सर्दी खांसी हो जाती है। तो हमें उसकी बड़ी चिंता थी कि उसको कैसे अलग रखा जाए। तो हमने उसको अपने साथ साथ उसको केवल दिन में 1 गोली कोरोनिल की और रात को सोते समय स्वासरी तेल उसके नाक में डाला। उसको बुखार तक नहीं हुआ और वो बिल्कुल स्वस्थ रही। हम दोनों कोरोना पॉजिटिव पेशेंट एक ही घर में एक ही कमरे में हम रह रहे हैं और हमारी बेटी को बुखार तक ने नहीं छुआ। तो ये है कोरोनिल की। और मुझे अविश्वसनीय, मतलब मैं पहले विश्वास नहीं करता था, उसके बाद फिर मैं अब यहाँ आया। मैंने कहा मैं बाकी जो भी सिम्टम्स हैं वो सही करके आता हूँ पतंजलि योग। क्या करते हो? मैं IT इंजीनियर। IT इंजीनियरिंग है, इसकी इनर इंजीनियरिंग हमने ठीक कर दी है? तो ये तो किस किस का पूछें। दरअसल आ बात आ छे कि आ લોકોને પ્રોબ્લેમ તો ઘણી બધી થઈ રહી છે, તો હું આ ફંગલ ઇન્ફેક્શન એનું આટલું બધું ભય ડર લોકોના હૈયામાં ઘૂસી ગયું છે કે એનાથી આપણે મરી જશા થઈ જશે. ફક્ત 5 પ્રાણાયામ કરજો. पादहस्तासन, दक्षिणास्त्र संचालनासन,
પછી પર્વતાસન, સાષ્ટાંગાસન, ભુજંગાસન, पर्वतासन, वामश्व संचालनासन, પાદહસ્તાસન, ઊર્ધ્વહસ્તાસન અને પ્રણામાસન. આવી રીતે જે યોગ કરશે એ સદાય નિરોગ રહેશે. એબીપી અસ્મિતા પર દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો અને 100 પ્રકારથી સર્વદા નિરોગ રહેજો.